Hello class, welcome to our online English classes for UGC NET. And today we are going to discuss the most important tragedy of Shakespeare, Macbeth. Macbeth, very first, let's have some key facts of the play. Setting of the play is Scotland. The play is written in 1606. The full title of the play is The Tragedy of Macbeth. Macbeth is the shortest tragedy of Shakespeare, and the source of the play is Hollin's Chronicles. And the tragic flaw, as you know, that every chief protagonist of the tragedies of Shakespeare has some tragic flaw, means hamartia, due to which they invite their downfall. So Macbeth also has a tragic flaw, and that is vaulting ambition. Themes of the play: ambition and power, fate versus free will, guilt and conscience, appearance versus reality, supernatural and masculinity, and gender roles. Now, look at the characters of the play. Chief character is Macbeth and Lady Macbeth. Chief character is Macbeth. It means chief protagonist of the play, Macbeth and his wife, Lady Macbeth, who instigates Macbeth to kill King Duncan, who is the King of Scotland at present. King Duncan has two sons, Malcolm and Donalbain. And in background, three chief characters in supernatural is three witches who prophesies about Macbeth that he will become the next king of Scotland. Next important character of Macbeth is Banquo, fast friend of Macbeth and colleague in war against Norway. After this, Banquo has a son named Flance, and some fans of Scotland. And one more important character, Macduff, who kills Macbeth in the end. And Macbeth has a wife and a son, Macduff's son, whom Macbeth kills by sending his soldiers to assassinate. Or some minor characters, but important. These are the Than. What is the meaning of Than? Than जैसे कि पहले कुछ जागीरदार होते थे राजा के, राजा उनको कुछ जमीन देता था और जो वो जागीरदार थे वो उनको कुछ जो है कि वो टैक्स के रूप में उनको वो कुछ पैसा देते थे. तो कुछ hands हैं. Although these are the minors, but important characters, Lennox, Rosses, these are two minor important characters, Lennox and Rosses.
Roses is the one minor important character who informs Macbeth that he is made Thane of Cawdor. So these are the important characters. Now look at the plot of the play. So the play opens with discussion of three witches amid lightning and thundering. तो जो ये प्ले है वो स्टार्ट होता है तीन चुड़ैलों के एक सीन से जो आपस में बात कर रही हैं कि हमारी जो अगली जो मीटिंग होगी वो मैकबेथ के साथ होगी. On another side, a war is going on. एक युद्ध चल रहा है between Scotland and Norwegian's army, in which Macbeth and his friend, his colleague Banquo, who have just defeated the allied forces of Norway and Ireland, and they also came to know that in their army there is a traitor, treason, कि उनकी आर्मी में एक ये गद्दार है और उस गद्दार का नाम है और उस गद्दार का नाम है MacDonald. MacDonald is a traitor, and when King Duncan came to know that MacDonald betrayed the nation, so after listening this, King Duncan makes Macbeth Thane of Cawdor. Right now he is the Thane of Glamis, but after knowing that MacDonald has cheated on the country, cheated on the nation, तो किंग डंकन ने मैकडोनाल्ड के स्थान पर मैकबेथ को थैन ऑफ काउडर बनाने का फैसला किया और मैकडोनाल्ड को फांसी की सजा, मौत की सजा के देने का फैसला किया. इसके बाद जब मैकबेथ और ये बैंको युद्ध से वापस आ रहे थे तो रास्ते में उनको 3 चुड़ैलें मिलती हैं और उनका स्वागत करती हैं और वो मैकबेथ को थैन ऑफ ग्लैमिस से एड्रेस करती हैं और मैकबेथ के बारे में 3 भविष्यवाणी वो करती हैं. The first is that Macbeth, you are about to become Thane of Cawdor. मैकबेथ तुम अब थैन ऑफ काउडर बनने वाले हो. और दूसरी जो भविष्यवाणी वो करती है वो ये करती है कि इसके बाद तुम राजा बनने वाले. फिर इसके बाद जो ये बैंको है तो बैंको भी ये पूछता है कि भाई देखो तुमने मैकबेथ के बारे में तो ये भविष्यवाणी ये कर दी
लेकिन तुमने मेरे बारे में कुछ नहीं कहा। तो वो तीनों चुड़ैलें ये कहती हैं कि तुम्हारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, दे विल रूल द स्कॉटलैंड एंड अदर कंट्रीज। अब इसके बाद जो ये मैकबेथ और जो ये बैंको है, वो जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में उनको हैन ऑफ रोज मिलता है और वो ये कहता है कि मैकबेथ को थैन ऑफ काउडर बना दिया गया है, और जो वो ट्रेटर था, वो गद्दार था, इट मींस मैकडोनाल्ड, उसको फांसी दे दी गई है और उसके स्थान पर मैकबेथ को थैन ऑफ काउडर बना दिया गया है। जब मैकबेथ और ये बैंको राजा के वो जब किंग डंकन के दरबार में वो जाते हैं, तो किंग डंकन दोनों लोगों का बहुत प्यार से, आदर से सम्मान करते हैं और ये कहते हैं कि मैंने अपना होने वाला जो राजा है, मैंने वो चुन लिया है। अब जो मैकबेथ होता है वो तो यही सोचता है कि अब राजा जो है वो मेरा नाम नॉमिनेट करने वाले हैं, लेकिन फिर बाद में जो ये मैकबेथ होता है, ही रिमेन्स ब्लैंक एंड स्टार्टल्ड। वो बिल्कुल ये ब्लैंक हो जाता है जब ये राजा अपने बेटे मेलकम को अगला राजा घोषित करते हैं। तो इस बात को सुनकर जो मैकबेथ होता है वो स्तब्ध हो जाता है, अपेल्ड रह जाता है, स्टार्टल्ड रह जाता है। अब मैकबेथ ये सोचता है, यार पहली जो जो फर्स्ट प्रोफेसी थी वो तो पूरी हो गई, लेकिन सेकंड जो प्रोफेसी थी, जो दूसरी जो ये भविष्यवाणी थी, वो पूरी क्यों नहीं हुई, जबकि उन तीन चुड़ैलों ने ये कहा था कि मुझे राजा बना दिया जाएगा। इसके बाद जो मैकबेथ होता है वो अपनी पत्नी लेडी मैकबेथ से वो मिलता है घर जाकर और ये बोलता है कि देखो ऐसे ऐसे मुझे रास्ते में तीन चुड़ैलें मिली थी और मेरे बारे में तीन भविष्यवाणी ये की थी, लेकिन एक भविष्यवाणी तो पूरी हो गई, लेकिन दूसरी जो ये भविष्यवाणी है, मैं उस बात से बहुत परेशान हूं कि उन तीन चुड़ैलों ने ये कहा था कि तुम हैन ऑफ काउडर के बाद तुम स्कॉटलैंड के राजा बना दिए जाओगे, लेकिन किंग डंकन ने अपने बेटे को राजा बना दिया। अब इसके बाद जो लेडी मैकबेथ है वो मैकबेथ को इंस्टिगेट करना शुरू कर देती है कि देखो, अब जैसे कि राजा ने ये हमारे पास एक मैसेज ये पुछवाया है कि आज की रात मैं मैकबेथ के महल में जाके मैं ठहरूंगा और अपनी जो जीत का जो एक जश्न है वो हमारे यहाँ पे आके वो मनाएंगे, तो इस जश्न का हम फायदा उठाएंगे। अब जो मैकबेथ है वो पूछता है वो कैसे, तो लेडी मैकबेथ अपना पूरा प्लान मैकबेथ को बता देती है। वो कहती है कि देखो, जब राजा हमारे यहाँ पे आज सोने के लिए आएंगे तो हम नींद में किंग डंकन को मार देंगे और उसका जो सारा इल्जाम है, राजा के जो रॉयल गार्ड्स होंगे, चैम्बरलिन्स, उनके ऊपर हम सारा दोष हम मढ़ देंगे। यानी कि मारेंगे तो हम, लेकिन हम सारा दोष राजा के रॉयल गार्ड्स पर हम लगा देंगे। लेकिन मैकबेथ इस बात को नहीं मानता है। मैं कहता नहीं, ये पाप है,
और ये सब करना ठीक नहीं है। लेकिन लेडी मैकबेथ इस बात के लिए एडमेंट हो जाती नहीं, अगर देखो तुम्हें स्कॉटलैंड का राजा बनना है तो तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। अब आफ्टर सो मच हेजिटेशन, आफ्टर ऑल लेडी मैकबेथ की पत्नी थी, और जब कोई पत्नी अपने पति को अगर कोई बात मनवानी हो तो वो मनवा कर रहती है। यही काम मैकबेथ के साथ भी हुआ। मैकबेथ मान गया, he gave in, he was persuaded by Lady Macbeth, and he gets ready to kill King Duncan. So when King Duncan comes to spend and celebrate his victory in the castle of Macbeth at Inverness, मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ, जो किंग डंकन के जो रॉयल गार्ड्स होते हैं, उनको वो शराब पिला देते हैं, और शराब पिलाकर वो जब सो जाते हैं तो लेडी मैकबेथ क्या करती है, उनमें से एक रॉयल गार्ड का एक छुरी, एक ये डैगर वो लाती है और वो मैकबेथ को दे देती है और कहती है कि लो, ये रॉयल गार्ड का एक ये डैगर है, ये छुरी है, तुम्हें इससे किंग डंकन को मारना है, ताकि पूरा शक जो है वो रॉयल गार्ड्स पर चला जाए। सो व्हेन किंग डंकन इज asleep, Macbeth stabs him, but he is shaken by the number of supernatural portents, including hallucination of a bloody dagger. जब वो मार रहा होता है तो उसको बहुत सारे हेलुसिनेशन आ रहे होते हैं एक डैगर के। Macbeth is so shaken that Lady Macbeth had to take charge. जब मैकबेथ किंग डंकन को मार रहा होता है तो उसके हाथ पैर सब कांप रहे होते हैं, लेकिन लेडी मैकबेथ उसको संभाल लेती है और वो जो ये पोजीशन है वो ले लेती है, और वो कहती है, और वो उसको फिर मैकबेथ को समझाने की वो कोशिश करती है, और वो ये कहती है, लिटिल वाटर विल वॉश आवर सिन, कि थोड़ा सा पानी हमारे सारे पाप को ये बाद में ये धो देगा। और फिर किंग डंकन को मारने के बाद they placed the bloody dagger in the hands of sleeping royal guard of King Duncan. Next morning, जब two noblemen and one ten लेनॉक्स, मैंने अभी आपको ये जो कैरेक्टर इसके बारे में मैंने आपको ये बताया था, लेनॉक्स और ये मैकडफ, जब वो राजा से मिलने के लिए मैकबेथ के महल में आते हैं, तो मैकबेथ उनको किंग डंकन के रूम में ले जाता है, और मैकबेथ ऐसे बिहेव करता है कि जैसे कि मानो वो बिल्कुल कुछ वो ना जानता हो, क्योंकि उस समय जब ये मैकबेथ राजा के दरबार में वो जाते हैं, तो लेनॉक्स और ये मैकडफ के सामने वो ड्रामा करने की कोशिश करता है कि देखो, हमारे राजा को किसी ने ये मार दिया है, और मुझे ये लगता है कि राजा को मारने का जो काम है वो किसी रॉयल गार्ड का है, कि देखो जो ये छुरी है वो किसी रॉयल गार्ड की है, और मुझे ये लगता है कि यहाँ पे जो इस रूम के बाहर जो ये रॉयल गार्ड्स बैठे हैं, तो लगता है मुझे इनमें से किसी ने ही राजा को मार दिया है। अब मैकबेथ क्या करता है, वो छुरी को ले जाकर वहां जो ये गेट पर जो वो शराब में जो
सोए हुए जो एक रॉयल जो ये रॉयल ये गार्ड होता है, उनमें से एक को वो मार देता है ताकि वो अपनी बेगुनाही को साबित ना कर सके। उधर किंग डंकन के जो ये बेटे होते हैं, कि मैल्कम और जोनाल बेन, वो इंग्लैंड भाग जाते हैं और एक उनमें से आयरलैंड भाग जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि अब राजा को मारने के बाद हमारा भी नंबर आ जाए। लेकिन ये सब की देखकर जो ये मैकडफ होता है वो थोड़ा सस्पिशियस हो जाता है, उसको मैकबेथ पर शक होने लगता है। अब इसके बाद जो मैकबेथ है वो अपने आप को स्कॉटलैंड का राजा घोषित कर देता है। इसके बाद लेकिन जो ये बैंको होता है, वो बैंको उन 3 चुड़ैलों की जो ये भविष्यवाणी है वो याद करता है कि कैसे कैसे हम दोनों को उन 3 चुड़ैलों ने ये बात बताई थी कि पहले तो मैकबेथ को हैंड बनाया जाएगा, उसके बाद वो राजा बन जाएगा। तो मुझे ये लगता है क्योंकि जो हमारे महाराज थे वो मैकबेथ के महल में सो रहे थे, तो मुझे ये लगता है कि हमारे राजा को मारने में जो हाथ है वो मैकबेथ का है। अब 2 लोगों के माइंड में ये बात खटक रही है, एक तो किसके, ये जो है कि बैंको के, और एक किसके, मैकडफ के, जो एट द स्पॉट पर उपस्थित था जब उसने राजा को मरे हुए ये देखा और उसने मैकबेथ का जो बिहेवियर था उसको ऑब्जर्व किया। उस समय तो जो ये मैकडफ है वहां से वो सब चला जाता है। अब बैंको के माइंड में भी ये बात चल रही है कि हो ना हो कि राजा के कत्ल में मैकबेथ जरूर शामिल है। अब उधर जो ये मैकबेथ है वो भी इस बात को याद कर रहा है कि क्योंकि उन 3 चुड़ैलों ने ये भविष्यवाणी की थी क्या, कि बैंकों की होने वाली जो औलादें हैं वो स्कॉटलैंड पर राज करेगी। तो वो अब माइंड में अपने ये एक प्लान बनाता है। ही चॉक्ड आउट ए प्लान टू किल बैंको एंड हिज सन फ्लैंस, एंड मैकबेथ सेंड्स हिज सोल्जर टू assassinate Banquo and his son Flans. But the soldiers of Macbeth only managed to kill Banquo, and Flans managed to flee. अब लेकिन जो ये बैंको है वो तो मारा जाता है, लेकिन उसका जो बेटा होता है वो भागने में सफल हो जाता है। इसके बाद किंग मैकबेथ जब राजा बन जाता है, he throws a party. He throws a splendid banquet. वो एक शानदार वो दावत को रखता है और उसमें जो थैंक्स हैं, जो भी स्कॉटलैंड के सब थैंक्स थे उन सबको बुलाता है उस दावत पर। लेकिन वहां जब ये दावत चल रही होती है तो वहां पे एक बहुत अजीब इंसिडेंट हो जाता है। जब सारे मेहमान लोग मैकबेथ की ये दावत को एंजॉय कर रहे थे तो उसी समय जो मैकबेथ होता है वो बैंको के भूत को देखता। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो जो ये भूत था वो केवल बस बैंको को ही दिख रहा था और किसी को नहीं दिख रहा था। अब जो मैकबेथ होता है वो बहुत घबरा जाता है, उसके फेस पर रिंकल्स पड़ जाती हैं, सब टेंशन।
अब इस बात को, क्योंकि लेडी, जो उसकी जो पत्नी थी लेडी मैकबेथ, वो भांप लेती है और वो ये सोचती है कहीं ऐसा ना हो कि अभी सारी सब पोल पट्टी ये सब खुल जाए और और जो और जो मेरे जो हस्बैंड है ये मैकबेथ, वो अपना वो जुर्म कबूल कर लें कि उन्होंने ही जो है कि बैंकों को वो मारा है। Macbeth raves fearfully, startling his guest as the ghost is only visible to Macbeth. Now, Lady Macbeth tries to pacify all the guests, saying her husband is merely afflicted with familiar and harmless malady. अब वहां से जो भूत है वो चला जाता है, लेकिन फिर बाद में थोड़े थोड़े अंतराल पर वो मैकबेथ को परेशान करने लगता है। अब जो ये मैकबेथ होता है वो एक बार फिर उन 3 चुड़ैलों के पास हो जाता है और कहता है, ये बताओ कि तुमने तो ये कहा था कि मैं स्कॉटलैंड का राजा ये बन जाऊंगा, लेकिन वो फिर उनसे ये पूछता है टू रिवील द ट्रूथ ऑफ देयर प्रोफेसीज, कि तुमने जो भविष्यवाणी की थी उनके पीछे क्या राज है, क्योंकि जो ये बैंकों का जो ये बेटा है वो भाग गया है, तो ये मुझे यह बहुत खतरा हो रहा है। तो एक बार फिर वो 3 चुड़ैले बारी बारी से 3 ये भविष्यवाणी और 3 सावधानियां तो ये बताती हैं। क्या? फर्स्ट, इन फर्स्ट all 3 witches conjure an armored head which tells Macbeth to beware of Macduff. वो जो है वो जादू से एक एक जो है कि वो सर प्रकट करती है और मैकबेथ को ये बता, देखो ये जो आदमी है ये मैकडफ, इससे तुम सावधान रहना कहीं ऐसा, क्योंकि अगर तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है तो वो किससे है? मैकडफ से है। सेकंड, all 3 witches conjured up a child who tells him that no one born of a woman shall be able to kill him, कि कोई भी ऐसा इंसान जो औरत से नेचुरली पैदा हुआ हो वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। थर्ड, एंड इन थर्ड ऑल द 3 witches conjured up a crowned child, वो एक छोटे से वो जो है बच्चों को एक बच्चे को फिर जब प्रकट करती हैं, उसके ऊपर एक मुकुट लगा हुआ होता है और वो जो बच्चा है वो उनको ये बताता है कि मैकबेथ जब तक सेफ है, मैकबेथ तब तक सेफ है कि जब तक के जो ग्रेट बर्नम के जो ये जंगल हैं वो तुम्हारा जो ये किला है डनसेनन हिल, वो उसके सामने ना आ जाए। इट मीन्स कि तुम्हें कोई नहीं मार सकता जब खुद ग्रेट बर्नम के जो ये जंगल हैं वो तुम्हारे किले के सामने ना आ जाए। अब जो मैकबेथ होता है उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि देखो अब मुझे कोई नहीं मार सकता। भाई जो ये बर्नम के जो ये जंगल हैं वो कैसे मेरे महल के सामने तक आएंगे, और कोई भी इंसान जो अपनी मां से नेचुरली पैदा हुआ हो वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अब जो मैकबेथ होता है ही इज इन full assurance given by
three witches. But he misinterprets, but he underestimates, and he could not interpret the three predictions of three witches. So Macbeth feels relieved and secure because he knows that all men are born of women and forest of great Burnham cannot move. And so Macbeth also asked whether Banquo's son will ever reign in Scotland, which is make him realize all Banquo's sons will acquire kingship in numerous countries. तो मैकबेथ ये बात भी उन तीन चुड़ैलों से पूछता है कि ये बताओ कि जो ये बैंको का जो ये बेटा है जो भाग गया है, क्या वो स्कॉटलैंड का राजा ये बन पाएगा? तो वो तीन चुड़ैले मैकबेथ को इस बात के लिए आश्वस्त करती है कि देखो, जो ये किंगशिप है वो बैंको के जो है ये बेटों के पास तो आएगी, लेकिन अलग अलग कंट्रीज, स्कॉटलैंड में नहीं आएगी. आफ्टर ऑल विचेस परफॉर्म डांस एंड लीव. अब इसके बाद जो वो तीन चुड़ैलें हैं वो डांस करती हैं और वहां से वो चली जाती है. देन नेक्स्ट डे Hen named Lennox enters and informed that Macduff has fled to England. अब एक जो ये थैन था लेनॉक्स, वो मैकबेथ को ये बताता है कि भाई जो ये मैकडफ है उसे शक हो गया था कि राजा को मारने वाले तुम हो, तो इसलिए वो इंग्लैंड में जो है तो वो भाग गया. अब जो ये मैकबेथ होता है वो अपने सब सोल्जर वो अपने कुछ सोल्जर्स को आदेश वो देता है कि तुम मैकडफ के तुम ये घर पे जाओ और जो भी मिले, पत्नी बच्चे कोई भी, माँ बाप कुछ भी, उसको तुम उनको मार डालो. अब ऐसा ही करते हैं जो मैकबेथ के जो सोल्जर्स होते हैं, जो मैकबेथ की जो आर्मी होती है वो मैकडफ के वो घर पे जाती हैं और उसके बीवी बच्चों को मार देते हैं. लेकिन जो हम पाप करते हैं उसका जो एक इम्पैक्ट है वो हमारे मन पे वो आने लगता है, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ. जो मैकबेथ की जो ये पत्नी होती है लेडी मैकबेथ, वो बीमार होने लगती है आउट ऑफ गिल्ट. She becomes racked with a guilt from the crimes which she and her husband committed. At every night, Lady Macbeth walks in sleep, holding a candle in her hand, and she starts bemoaning the murders of King Duncan, Lady Macduff एंड बैंको. हर रात वो नींद में चलती है मोमबत्ती को हाथ में लेकर, और वो रोने लगती है कि हमने जो ये तीन पाप किए हैं, जो हमने ये तीन मर्डर किए हैं, किंग डंकन का, लेडी और मैकडफ की पत्नी का, और उसके ये बच्चे का, और ये बैंको का. हर रात उसका यही काम होता है, वो नींद में चलती है मोमबत्ती को हाथ में लेके और रोने लगती है, और जो ये विलाप करती है तो उन सब मौतों का, वो मौतें जो लेडी मैकबेथ ने जो मैकबेथ को इंस्टिगेट करके जो ये करवाई हैं. Her belief that nothing can wash away the blood stain on her hands. अब वो ये विश्वास कर लेती है कि उसके हाथ पर जो खून के सब दाग जो ये लगे हैं, इन सब मौतों के, ये कोई नहीं धो सकता. देखो ये बिल्कुल उल्टा हो गया. जब लेडी मैकबेथ को इंस्टिगेट कर रही थी वो मारने के लिए, तो वो क्या बोलती है? ए लिटिल वाटर क्लियर्स अस ऑल ऑफ आवर डीड.
कि एक थोड़ा सा जो ये पानी है वो हमारे सब पापों को धो देगा। उधर इंग्लैंड के अंदर जो है कि मैकडफ को जब ये बात पता लगती है रॉस के द्वारा, रॉस जो एक फैन था, कि उसकी पूरी फैमिली को काट दिया गया है, उसकी पूरी फैमिली को स्लॉटर कर दिया गया है। सो मैकडफ गेट्स स्ट्राइकन विद ग्रीफ एंड ही वॉज रिवेंज अपॉन मैकबेथ। तो वो कसम खाता है मैकबेथ को मारने की। उधर प्रिंस मेलकम, जो ये डंकन का जो ये बेटा होता है, he has succeeded in raising an army in England and Macduff joins him। और जो ये मैकडफ है उसको वो ज्वाइन करता है and they set out to fight with the army of Macbeth। They are also supported by some Scottish nobles who are rides to Scotland to challenge Macbeth's forces। लेकिन जब मेलकम और मैकडफ की आर्मी स्कॉटलैंड आते हैं तो वो कहां रुकते हैं? देखो वो कहां रुकते हैं, वो रुकते हैं बर्नम के वो उस विशाल जंगल में। और वो क्या करते हैं, ताकि रात को मैकबेथ की आर्मी को शक ना हो, तो वो रात को वो क्या करते हैं, जो ये बर्नम के जो ये जंगल होते हैं उनकी पेड़ों की जो शाखाएं हैं उन शाखाओं को अपने आसपास लपेट लेते हैं ताकि रात को उन्हें कोई देख ना पाए। इस तरीके से एक विशाल आर्मी ये बर्नम के जंगल को अपने आसपास लपेट लेती है, उनकी शाखाओं, उनके उस जंगल के पेड़ों की शाखाओं को काटकर। अब इस प्रकार से जो एक भविष्यवाणी थी वो सच होने वाली थी। वो क्या कि बर्नम के जो ये जंगल हैं वो मैकबेथ के कैसल तक खुद चलकर आ रहे थे। मैकबेथ रिसीव्स द न्यूज दैट when he was fighting against the army of Prince Malcolm, that he receives a news that his wife Lady Macbeth has killed herself because she was extremely dejected and she was sunk into pessimism. She could not endure the guilt of murdering King Duncan, Lady Macduff, and her son and Banquo. So, Macbeth speaks a famous soliloquy, tomorrow, tomorrow, and tomorrow. Although he was certain that witches' prophecies guarantees his invincibility, but is struck with fear when he learns that English army is advancing on his castle, shielded with bogs cut off from burn and wood। लेकिन जब उसको ये बात पता लग जाती है कि इंग्लैंड की जो आर्मी है, जो ये मेलकम और जो ये मैकडफ की जो आर्मी है वो बर्नम का जो एक जंगल है उनकी शाखाओं को ओढ़कर रात से आ रही है, तो वो ये बात सोचता है कि शायद मैंने उन तीन विचेस की जो भविष्यवाणी थी मैंने उनको शायद रॉन्ग इंटरप्रेट कर लिया। और अब युद्ध हो जाता है किस किस के बीच? मैकबेथ के बीच और मैकडफ के बीच। लेकिन जो मैकबेथ है वो ये कहता है कि देखो, मुझे इस दुनिया में कोई नहीं मार सकता है जो भी अपनी मां से नेचुरली पैदा हुआ है। But Macduff declares that he was from his mother's womb, untimely, before time, ribbed
and is not of woman born, कि मुझे अपनी मां से मैं नेचुरली पैदा नहीं हुआ हूं, मुझे तो अपनी मां के पेट से बाय सिजेरियन निकाल लिया गया। किसको बोलते हैं हम सिजेरियन? जब ये महिला जब अपने बच्चे को वो जन्म देती है तो वो उसका जो पेट है वो टाइम से पहले ही वो काट कर जो ये बच्चा है वो निकाल लिया जाता है, उसको बोलते हैं सिजेरियन। अब एक बार फिर जो मैकबेथ होता है वो समझ जाता है कि मैंने उन 3 चुड़ैलों की जो भविष्यवाणी थी मैंने उनको रॉन्गली इंटरप्रेट किया, और मैकडफ realizes that and Macbeth realizes that he misinterpret witches' prophecies, and Macduff kills Macbeth and beheads him, fulfilling the remaining prophecies. Macduff carries Macbeth's head outstage, and Malcolm discusses how order has been restored. Malcolm has now become the king of Scotland. और इसके बाद जो किंग डंकन का जो बेटा होता है वो यानी कि मैल्कम, वो स्कॉटलैंड का राजा बन जाता है। हालांकि इसमें ये बात बताई गई थी जैसे कि जो कि बैंकों का जो ये बेटा है वो बनेगा, आल्दो लेकिन जो ये मैल्कम है उसको राजा बना दिया जाता है। Now look at the famous dialogues of Macbeth. The first dialogue is, fair is foul and foul is fair. This dialogue belongs to one of theme of Macbeth, appearance and reality, which I told you earlier. This dialogue is spoken by 3 witches in the opening scene. And what is the meaning of this dialogue? That what seems good may be evil, and what appears evil may hide truth. Second, look like innocent flower, but beats the serpent under it. This dialogue is spoken by Lady Macbeth, advising Macbeth on how to deceive King Duncan before murdering him. Appearance, and the meaning of this dialogue is, appearance must hide reality. Lady Macbeth becomes the driving force behind the murder of King Duncan. Third dialogue, when Macbeth was murdering King Duncan, he has some hallucination that a dagger is coming before him. So he says that, is this a dagger which I see before him? क्या मैं ये अपने सामने एक ये dagger को मैं देख रहा हूं? Next, sleep no more. Macbeth does murder sleep. वो कहता है कि मैंने खुद अपनी नींद की हत्या कर दी। I have myself destroyed my own peace of mind, and foreshadowing his insomnia and paranoia.
A little water clears us of this deed. After Duncan's murder, Lady Macbeth tells Macbeth that little water will clear us all of our sin, कि थोड़ा सा ही पानी हमारे सब पापों को धो देगा. नेक्स्ट डायलॉग, जब ये डंकन का जो ये बेटा होता है डोनाल्वेन, वो मैकबेथ के बारे में वो ये बोलता है, देयर इज ए ड्रैगर इन मैन्स स्माइल्स. देयर इज ए ड्रैगर इन मैन्स स्माइल, कि जो आदमी ज्यादा हंसता है वो कहीं ना कहीं उसके मन में कुछ खोट होता है. फुल ऑफ स्कॉर्पियंस इज माई हैंड डियर वाइफ. ये डायलॉग जो है वो मैकबेथ बोलता है. कब बोलता है ये डायलॉग? जब उसको बैंकों का भूत बार बार दिख रहा होता है. So his mind becomes restless and poisoned by fear and ambition. He was afflicted with his inner struggle and inner torment. Double toil and trouble, fire burn and cauldron bubble. ये जो एक डायलॉग है वो जो है कि मैकबेथ में इसको बोलते हैं कि ये कोल्ड्रन सीन. किसको बोलते हैं हम? कोल्ड्रन सीन. कोल्ड्रन किसको बोलते हैं? जो ये कढ़ाई होती है. तो जब भी तीन चुड़ैलें आपस में वो बात कर रही होती है तो वो एक कढ़ाई में एक पोषण को, एक जो है कि तो वो लिक्विड को उबाल रही होती है, पका रही होती है. और ये कहती हैं कि हम जितनी मेहनत हम करेंगे, हम उतना ही इस संसार को हम परेशान हम करेंगे. Now, next dialogue is of Lady Macbeth. Here is the smell of the blood still. All the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. You must have heard about this dialogue that अगर अरब का सारा सेंट, सारा परफ्यूम भी मेरे हाथों को धो देगा, जब भी मेरे हाथों से मर्डर की जो ये बदबू है वो मेरे हाथों से नहीं जाए. Tomorrow and tomorrow and tomorrow. This dialogue is spoken by Macbeth when he hears the news of the suicide of his wife. And this dialogue signifies nihilism. It means meaningless of life. Vaulting ambition which overleaps itself and falls on the other. This sentence is spoken by Macbeth. इसका मतलब यह है कि आज जो वॉल्टिंग एम्बिशन मेरे अंदर है तो वो कल किसी और के अंदर भी जाग सकती है. False face must hide what the false heart doth know. It means this dialogue is spoken by Macbeth after Lady Macbeth convinces him murder King Duncan. Will all great Neptune's ocean wash this blood clear from my hand? And this dialogue is spoken by Macbeth after killing Duncan. He says that अगर समंदर का सारा पानी भी आ जाए फिर भी वो मेरे पाप नहीं धो सकता. What is done. लेडी मैकबेथ ये बोलती है कि जो हो गया सो हो गया. She tries to reassure Macbeth after Duncan's murder. Macbeth shall never vanquish be until great Birnam wood to high Dunsin Hill
shall come against. Now, this is one of the prophecies of three witches. वो कहती हैं क्या कि जब तक के बर्नम के ये जो वो जंगल है वो जब तक तुम्हारे गेट के सामने नहीं आते तुम्हें कोई नहीं मार सकता. None of women born shall harm Macbeth. And this is also one of second prophecies of three witches. कि कोई भी आम इंसान जो अपनी माँ से नेचुरली पैदा हुआ हो वो मैकबेथ को नहीं मार सकता. The love that follows us sometime is our trouble. ये जो डायलॉग है वो बोलता है किंग डंकन जब वो मैकबेथ के यहाँ पे मेहमान वो जब अपनी वो जीत का जश्न मनाने के लिए आता है कि ये भी बहुत अजीब बात है कि जब कोई मेहमान किसी के यहाँ पे वो जाता है तो होस्ट को बहुत परेशानी होती है. नेक्स्ट डायलॉग, वन ऑफ मोस्ट फेमस इंपोर्टेंट soliloquies of Macbeth. After tomorrow, tomorrow and tomorrow. If it were done when it is done, then it were done quickly. Now this dialogue is the opposite of Hamlet. Hamlet who always procrastinate his action, but Macbeth always remain in haste. वो बहुत जल्दी में जो है तो वो रहता है. So this dialogue is also most important. And this is the most famous again dialogue. Life is nothing but a walking shadow, a poor player that struts and frets his hour upon the stage and then is heard no more. It is a tale told by an idiot full of sound and fury. These lines full of sound and fury. This half line becomes the title of William Faulkner's famous novels, Full of Sound and Fury. And so this dialogue is also most important. Very simple dialogue, and you can see. Now look at the important questions of Macbeth. Fair is foul and foul is fair. Who says this? Three witches. कौन कहता है? तीन चुड़ैले ये डायलॉग ये बोलते कि जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं. At the beginning of the play, Macbeth holds the title. जब प्ले स्टार्ट होता है तो मैकबेथ किस टाइटल से वो जाना जाता है? Thane of Glamis. Who first greets Macbeth as Thane of Cawdor? सबसे पहले कौन Thane of Cawdor कह के पुकारता है मैकबेथ को? रॉस. मैंने आपको ये प्लॉट में ये बताया. बैंको इज टोल्ड बाय द थ्री विचेस. तो बैंको के बारे में क्या भविष्यवाणी की जाती है कि उसके आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो राजा बने. लेडी मैकबेथ्स वर्ड्स अनसेक्स मी हियर एक्सप्रेस. लेडी मैकबेथ का ये डायलॉग अनसेक्स मी हियर क्या बताता है? हर डिजायर टू बी फ्रीड फ्रॉम फेमिनिन वीकनेस. Who discovered King Duncan's body? Macduff. The daggers Macbeth sees is only a hallucination, symbolizing his ambition. Who escapes when Macbeth's men attack? Flans जो है वो भाग जाता है जब मैकबेथ के आदमी वो बैंको को मारने के लिए जाते हैं. The banquet scene is significant. उस दावत जो वो एक दावत का जो सीन होता है जब मैकबेथ अपने राजा वो बनने पर लोगों को वो देता है तो वो सीन इंपॉर्टेंट क्यों है? वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसी सीन में जो मैकबेथ होता है वो जो है ये बैंको का भूत देखता है. The witches tell Macbeth that he will not be defeated until Birnam Wood comes to Dunsinane. कि
तुम्हें कोई जब तक नहीं मार सकता तब तक नहीं मार सकता कि जब तक ये बर्नम के जंगल तुम्हारे महल के सामने ना आ जाए। None of women born shall harm Macbeth refers to Macduff. Out damned spot out I say, ये डायलॉग किसने बोला? लेडी मैकबेथ। Which theme is reinforced by Lady Macbeth's sleepwalking? Guilt and psychologically punishment. Guilt and psychologically punishment. Who kills Macbeth in the final battle? Macduff. Macbeth's last soliloquy begins with tomorrow, tomorrow, and tomorrow. Most important soliloquy of Macbeth. Which symbol is most repeatedly associated with guilt? Blood. Out, brief candle refers to lady, the brevity of life, short life and meaningless life. Candle is the symbol of short and meaningless life and walking shadow. Who says, look like the innocent flower, but be the serpent under it? Lady Macbeth. जब वो किंग डंकन को मार रहे होते। Which of the following theme is not central to Macbeth? Ambition, guilt, appearance versus reality. So एम्बिशन भी इसकी थीम है, ये गिल्ट भी थीम है, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी भी थीम है, पास्टोरल रोमांस इसकी कोई थीम नहीं। ठीक है, which symbol in Macbeth most strongly represent guilt? Which symbol in Macbeth most strongly represent guilt? Blood. Who discovers Duncan's murdered body? ये पहले भी आया, Macduff. The moving of Birnam Wood to Dunsinane happens because soldiers cut branches of Birnam Wood to disguise themselves. In Macbeth, who was from his mother's womb ultimately ripped? Macduff. So these are some important questions. I hope you liked the video. We shall meet very soon in my next video. Till then, signing off.